अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट उर्दू में। Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment English. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285. Deputy Editor Sunita Mehto 8609415270. चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। बंगाल हुकूमत हर तबका के पुजारियों को हर माह 1000 रुपये जुमा के रोज़ मगरबी बर्दवान जिला के दफ्तर अग्नि कन्या भवन मगरबी बर्दवान जिला के सदर जतिंदर कुमार तिवारी सर MLA पंडेश्वर कारपोरेशन एडमिनिस्ट्रेटर मगरबी बर्दवान जिला में देंगे। तृणमूल के तर्जुमान तापस बनर्जी कोऑर्डिनेटर हरिराम सिंह अशोक रुद्र हर माह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुजारियों मौलवियों पादरियों सिखों के पादरियों को 1000 रुपये बतौर अलाउंस दिए जाएंगे और इससे पहले के रियासत के कायदीन इन्हें फॉर्म पेश करें मंजूरी की वजह से वो इस अलाउंस के हकदार होंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मगरबी बर्दवान जिला के सदर जतिंदर कुमार तिवारी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि ये दूसरा मरहला है। 2633 में मुस्तहकीन को ये अलाउंस मिला है। सुनिए श्री जतिंदर तिवारी ने क्या कहा। প্রত্যেকের খেয়াল রেখেছি এবং যারা যারা বিভিন্ন সময় মুখ্যমন্ত্রীকে তাদের অসুবিধার কথা জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী তার বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন স্কিমের মাধ্যমে তাদেরকে কি করে সাহায্য করা যায় সেই চেষ্টা তিনি করেছেন। ছাত্রছাত্রীদের জন্য তিনি করেছেন, শ্রমিকদের জন্য করেছেন, কৃষকদের জন্য করেছেন, সবার জন্যই করে, মহিলাদের জন্য করেছেন। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বেশ কিছু পুরোহিত যারা আছেন বিভিন্ন ধর্মে, হিন্দু ধর্মে আছেন, খ্রিস্টান যারা আছেন, শিখ যারা আছেন, যারা পুজো করেন, তারাও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অ্যাপিল করেছিলেন যে আমাদের অনেকের অসুবিধা আছে, আমাদের জন্য যদি আপনি কিছু করেন। এবং তাদের অসুবিধার কথা মাথায় রেখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পুরোহিত ভাতা স্টার্ট করেছিলেন এবং পুরোহিত ভাতা স্টার্ট হওয়ার দিন 10-এর মধ্যেই প্রথম লটে কিন্তু ফার্স্ট ফেজ 1-এ আমাদের এই জেলায় 685 জনকে পুরোহিত ভাতা অলরেডি দেওয়া হয়েছে। পাণ্ডবেশ্বর ব্লকে 41, দুর্গাপুর ফরিদপুরে 52, AMC এলাকায় 361, বারাবণীতে 54, আসানসোল সাউথ এবং রানীগঞ্জ যেটা বিডিওর আন্ডারে পড়ছে, রানীগঞ্জ আন্ডারে 51, রানীগঞ্জে শহরে তখন হয়নি, আন্ডারে তখন শূন্য ছিল, জামুরিয়াতে 50 এবং DMC এলাকায় দুর্গাপুর মিউনিসিপাল কর্পোরেশন এলাকায় 50 এবং কাঁকসা এলাকায় 26, 685 জনকে ফার্স্ট পেজে দেওয়া হয়েছে। তারপর এই জেলাতে আমাদের একটা পুরোহিত সম্মেলন হয় যেটাতে তাপসদা, আমাদের হরিরাম সিংজি, আমাদের অশোক রুদ্র সবাই উপস্থিত ছিলেন এবং সেখানে বেশ কিছু পুরোহিত যারা ছিলেন তারা বললেন যে তারাও এই স্কিমের আওতায় আসতে চান এবং তারাও অ্যাপ্লিকেশন করেছিলেন। এবং আপনাদের জেনে ভালো লাগবে যে আমাদের সরকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আবার এই জেলায় নতুন করে 1445 জনকে সেকেন্ড ফেজে অ্যাপ্রুভাল দিয়েছেন। তারাও কয়েকদিনের মধ্যে, দিন 10, 15 বা 1 মাসের মধ্যে পুরোহিত ভাতা পেতে শুরু করবে। এবং এর সঙ্গে সঙ্গে এর মধ্যে বিভিন্ন চার্চে যারা আছেন তারাও আছেন, এটাও জানতে পারবেন। এর সঙ্গে সঙ্গে যারা আদিবাসী আছেন, ট্রাইবাল, তাদের যারা পুজো করেন, আদিবাসীদের মধ্যে যারা তাদের পুরোহিত আছেন, তাদের জন্য এই স্কিমের আওতায় তাদেরকেও আনা হয়েছে এবং তারাও 503 জন এই সেকেন্ড ফেজে 503 জনকে ইনক্লুড করা হয়েছে। তারাও এই ফেজ 2-তে এই অর্থ পেতে শুরু করবে এবং ফেজ 1-এ যারা অর্থ পাচ্ছে এবং ফেজ 2-তে যারা অর্থ পাচ্ছে, সব মিলে আমাদের এই 1 মাসের মধ্যে এই জেলায় 2633 জন এই পুরোহিত ভাতা পেতে শুরু করবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে কথা দিয়েছিলেন সে কথা রেখেছেন এবং এটাই আমাদের দলের তরফ থেকে আপনাদেরকে জানানোর জন্য আজকে এই প্রেস মিট আমরা রেখেছি। এরপর এই বিষয়ে কিছু বলার জন্য, जैसा कि हम सब जानते हैं हिंदुस्तान में मिठाई के बगैर हम किसी भी त्यौहार का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसे दुकान का जिक्र करूंगी जिसकी मिठाइयाँ और नमकीन पूरे आसनसोल में मशहूर हैं। कच्ची भाजा आसनसोल में वाहिद एक ऐसा दुकान है जो अपने अलग तरीक़ों के लिए मशहूर है। ये दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी है। इनके पास कुछ बहुत से मुनफरिद मसनूआत हैं। इनके पास आपको खाकरों की काफ़ी सारी किस्म देखने को मिलेगी जो पूरे आसनसोल में नहीं है। ये इतना जायकेदार है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दुकान SBI बैंक के अपोजिट तरफ सिमरन राय रोड आसनसोल में मौजूद है। डिटेल्स के लिए आप रब्ता कर सकते हैं
0341230517 या फिर 9547356154। तो कुछ जायकेदार मुनफरिद मसनूआत के बारे में जानते हैं, जैसे मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, सादा खाकरा, मंचूरियन खाकरा, चीज़ खाकरा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक्स, रोस्टेड पीनट्स, सोया स्टिक्स, थेपले वगैरह। साबिक वजीर मदन मित्रा पहुंचे कल्याणेश्वरी। मुकामी निचली कारकिर्दों का खैर मकदम करते हैं। सलानपुर में साबिक वजीर ट्रांसपोर्ट और खेल के मदन मित्रा तृणमूल कांग्रेस के एक अस्क्रियत पसंद रहनुमा के साथ जुमेरात की शाम कल्याणेश्वरी के मंदिर आए थे। दूसरी तरफ कल्याणेश्वरी तृणमूल रीजनल कमेटी के सदर बोरा खान ने अपने हामियों के साथ इनका इस्तकबाल किया। मुलाकात के दौरान कल्याणेश्वरी ने तृणमूल ऑफिस में पार्टी कारकुनों के साथ एक मीटिंग की और आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए इकदामात पर तबादला ख्याल किया। उपाध्याय फातह होंगे। दूसरी तरफ इन्होंने पार्टी के तमाम कारकुनों को मिलकर काम करने की हिदायत की। इन्होंने मजीद कहा कि वाहिद मकसद यह होना चाहिए 2021 के असेंबली इंतखाबात में ममता बनर्जी को वजीर आला और विधान उपाध्याय MLA बनाएं। इस बहस में नौजवान तृणमूल यूथ सेक्रेटरी राजा खान, बाबाए घोषाल, पूर्ण सेन, गोविंदा प्रसाद, आकाश नोनिया, राज चौहान और बहुत से दीगर शामिल थे। मिलादुन नबी के मौका पर वर्क वालों की जानिब से 1500 मास्क और 1500 बोतल पानी और लोगों के हाथ सैनिटाइज किए और ख़ुद भी मास्क ग्लव्स पहनकर लोगों की खिदमत में पेश आए। इस तंजीम के मेंबर्स में कामरान साहिब, सलाउद्दीन साहिब, सरफराज साहिब, रईस साहिब, मोहम्मद फिरोज साहिब, सरवर साहिब, नदीम साहिब और अब्दुल मुनाफ इलियासी और दीगर लोग मौजूद थे। उन लोगों ने इस्लाम मज़हब के एक मशहूर हवाले को मशहूर किया है, जिसमें मोहम्मद साहिब ने दूसरे धर्म के लोगों पर जुल्म करने से मना किया है। न्यूज़ मोमेंट टीम को इस मौके पर कई लोगों ने मुबारकबाद भेजे हैं, जिसमें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सीनियर मेंबर और फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी सैयद मतलूब हाशमी, आसनसोल के फॉर्मर काउंसलर वसीमुल हक शामिल हैं। चूँकि छठ पूजा करीब आ रही है, छठ घाटों की सफाई सुथराई से की गई है। जुमा को परबलिया छठ घाट न्यूत्रिया पंचायत समिति के शरीक चेयरमैन कम नितुड़िया ब्लॉक तृणमूल के सदर शांति भूषण यादव और साल्टू ग्राम पंचायत के सरबराह सोमटू सागर प्रसाद यादव के साथ अपने हामियों और पंचायत अहदेदारों के साथ सफाई का जायजा लेने पहुंचे। शांति भूषण प्रसाद यादव ने मुलाजिमीन को सख्त हिदायत दी कि छठ के पहले घाट के किनारे जो जंगल है इसे साफ किया जाए और तमाम घाटों को खूबसूरत बनाया जाए और जो भी खराब है सड़कों की जल्द मुरम्मत कर दी जानी चाहिए। इस मौका पर मिस्टर यादव ने ये छठ घाट कहा, लेकिन परबलिया, साल ब्रेक, न्यूतुड़िया, सरबेरी, भामुड़िया से बड़ी तादाद में लोग छठ घाट पहुंचते हैं। इस बार कोरोना वबा के पेश नज़र सिलतोड़ पंचायत समिति के जरिए खुसूसी इंतजामात किए जाएंगे। घाट आने वालों के लिए मास्क, सैनिटाइजर का इंतजाम किया जाएगा। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मूवमेंट। बस ने स्कूटर सवार को टक्कर मारी। बड़ाकर में जुमा के रोज़ बड़ाकर हनुमान स्टैंड के करीब बड़ाकर से आसनसोल जाने वाली एक मिनी बस ने पीछे से 20 साला स्कूटी में बैठी खातून को पाकी की टक्कर मार दी, जिसकी वजह से वो बुरी तरह जख्मी हो गई। बेहतर इलाज के लिए इसे दुर्गापुर के निजी नर्सिंग होम में दाखिल कराया गया। कहा जाता है कि मिंटू की 20 साला लड़की जो बड़ाकर हनुमान चढ़ते मंदिर के करीब चाशापाड़ा में रहती है, इस खानदान से 2 बच्चों को ले रही थी। इस आसना आसनसोल की तरफ जाने वाली एक बस ने स्कूटर से चलने वाली लड़की को ढकेल दिया, जिससे इसका सर फटा। दोनों बच्चों को मामूली चोटें आईं। इतला मिलने पर बराकर पुलिस इंचार्ज रविंदर नाथ दोलाई ने जख्मी बच्ची को आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भेज दिया। डॉक्टर की सलाह पर सूरत हाल की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए दुर्गापुर में बेहतर इलाज के लिए दाखिल कराया गया। आलूदगी से पाक भारत बनाने के मकसद के साथ साइकिल दौरे का आगाज आसनसोल से किया जाएगा। आसनसोल सत्या सनातन सेना के जिला जनरल सेक्रेटरी पूर्ण कुमार सिंह साठा सनातन सेना के बैनर से हिंदू इतिहाद को फरोग देने के लिए 1 नवंबर को आसनसोल से दिल्ली तक साइकिल पर जाएंगे। सत्या सनातन आर्मी के जिला सदर राजन सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही। इन्होंने बताया कि साइकिल सफ़र 1 नवंबर को आसनसोल के गुजराती भवन से शुरू होगा, जो 12-13 दिन में दिल्ली पहुंचेगा। साइकिल मेहमान का इफ्तिताह चीफ मेहमान बीजेपी राज्य ख्वातीन मोर्चा की सदर अग्निमित्रा पाल ने झंडा उतारने के बाद किया। इस मौका पर बीजेपी के जिला मशेर सुब्रत घाटी, मिंटू घाटी मौजूद होंगे।
इसके अलावा दीगर मौज़िज़ीन भी शरीक होंगे। राजन सिंह ने कहा, बुनियादी मकसद ये है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पिछले 6 सालों में जो काम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया है, इसे आलूदगी से पाक हिंदुस्तान को फ़रोग़ देना और बनाना है। इस मौके पर ज़िला जनरल सेक्रेटरी पून कुमार सिंह ने कहा कि इस वक्त आलूदगी सबसे बड़ा मसला है। इंसानों को आगाह करने के लिए वो साइकिल से सफ़र कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि इंसानों को ज़्यादा से ज़्यादा बर्ताव करना चाहिए। जिस्म भी सेहतमंद रहता है, आलूदगी पर भी काबू पाया जाता है। साथ ही इन्होंने कहा कि मुल्क में हिंदू तंजीम टूट फूट का शिकार है। अवाम में हिंदू तंजीम को मजबूत बनाने के पैगाम को आम करेंगे। दुर्गापुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने गैर कानूनी तौर पर हुक्का बारों पर छापे मारे। दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर एरिया में बहुत सारे गैर कानूनी हुक्का बारें चल रही हैं। जुमा के रोज मेजर काउंसिल के मेंबर अमिताभ बनर्जी की सरबराही में दुर्गापुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बिजल अंबुजा की एक सिटी सेंटर मॉल और गैर कानूनी हुक्का बार में छापा मारा। दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर एरिया में बहुत सारे गैर कानूनी हुक्का बारें चल रही हैं। जुमा के रोज मेजर काउंसिल के मेंबर अमिताभ बनर्जी की सरबराही में दुर्गापुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बिजल अंबुजा के एक सिटी सेंटर मॉल और गैर कानूनी हुक्का बार में छापा मारा। Please share, subscribe and forward YouTube channel News Movement English. बढ़ाकर के लाल गुप्ता की तरफ से सील ग्रोथ रामनगर कोलवरी के एजीएम माइनिंग सुलिंदर कुमार ने जुमरात की रात कुल्टी गेस्ट हाउस में खुद को फांसी देकर खुदकुशी कर ली। जराये के मुताबिक काम करने के बाद वो रात 10 बजे खाने के बाद मस्कुरा गेस्ट हाउस में अपने कमरे में सोने के लिए गया था। जुमा की सुबह इसके नौकर ने इसे बेदार करने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा देर तक दरवाज़ा न खोलने के बाद मुलाजिम ने गेस्ट हाउस के अमले को इतला दी। इन लोगों ने भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा न खोलने के बाद कोलवरी जनरल मैनेजर टी.के. रॉय और कुल्टी पुलिस को इतला दी गई। अफसर और पुलिस वाक़े के इतला पर दरवाज़ा तोड़ते हुए पहुंच गए और कमरे में देखा कि सुलेंद्र कुमार पंखे से लटका हुआ था। इसे उतारा गया और इन्हें इंदिरा गांधी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच करके इसे मुर्दा करार दे दिया। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भेज दिया। ये मशहूर है कि सुलेंद्र कुमार गेस्ट हाउस में रहते थे और वहाँ से दफ्तर आते थे। इसका कुंबा चशानाला में रहता है। वाक़े की इतला मिलने के बाद इसका कुंबा और अहलिया रेणुबाला कुल्टी पहुंच गए। इतला मिलने पर चशानाला के बहुत से अहलकार भी मौका पर पहुंच गए। इस वजह से कुल्टी पुलिस इस खुदकुशी की तहकीकात कर रही है। ये कहा जाता है कि कोई भी नहीं जानता कि हम कब और कैसे मरेंगे। चलिए आज एक हैरत अंगेज वाक़े के बारे में आपको बताते हैं। आज सुबह एक शख्स की मौत मोटरसाइकिल को किक मारते वक्त हो गई। इसे जल्द ही एचएलजी अस्पताल ले जाया गया और वहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा शनाख्त करते हुए कहा कि इसकी मौत 30 अक्टूबर को सुबह 4 बजे हो गई थी। एक शख्स मिस्टर कन्हैया माली, जो तकरीबन 49 से 50 साल के होंगे, वो रामनगर कोलवरी के करीब रात के शिफ्ट में काम करते थे। इनका काम 3 बजे भोर को ख़त्म हो जाता था। काम ख़त्म होते ही इसने अपने घर, जो केंदुआ बाजार कुल्टी में है, जाने के लिए मोटरसाइकिल उठाई और वो किक मारकर अपने मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर रहे थे, पर बदकिस्मती से वो नहीं कर पाए। इनकी सांसें रुकने लगीं और वो अपने मोटरसाइकिल के किनारे बैठ गए और इनके साथ के लोगों को ऐसा लगा कि वो बीमार हैं। वो लोग इन्हें एचएलजी अस्पताल ले गए, पर इनकी मौत रास्ते में ही हो गई। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि इनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। इनके रिश्तेदार और करीबी लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि इनकी मौत ऐसे होगी। वो अपने 3 बेटी और 1 बेटे, जिनमें से 2 बेटियों की शादी हो चुकी है, इन्हें छोड़कर चले गए। न्यूज़ मूवमेंट ने इसके ख़ानदान से मुतल्लिक मुआहदे का इजहार किया। Please share, subscribe and forward YouTube channel News Movement English. जमुड़िया के मुस्लिम मोहल्ला यूथ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 1 नवंबर को ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया जाएगा, जो इतवार को सुबह 9 बजे 6 नंबर बाईपास रोड नई पानी टैंकी के करीब होने जा रहा है। इसके चीफ गेस्ट के तौर पर श्री अभिजीत घटक, जो बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर एएमसी के मेंबर हैं, ऑनर्ड गेस्ट के तौर पर सुब्रता घोष, स्पेशल गेस्ट के तौर पर श्रीधि सधान रॉय, वीआईपी गेस्ट के तौर पर एचके शानदार और अब्दुल हसन, मुस्तफीज़ हसन, मैमून राशिद और मोटिवेटर इसके दिलदार शामिल हैं। आज लक्की पूजा है। बंगाल में दुर्गा पूजा के बाद लक्की पूजा मनाने का रिवाज है। माँ लक्की की पूजा लोग अपने घर में मालदार होने और सुखी होने के लिए करते हैं और ये औरतों के एहतराम के लिए भी होता है। ये कहा जाता है कि जहाँ औरतों की इज्जत दी जाती है, धन में बरकत वही होती है। यहाँ ये सवाल खड़ा होता है, क्या हम इस रिवाज को मानते हैं या सिर्फ हम माँ लक्की की पूजा करते हैं और इनके सारे रिवाजों को भूलते जा रहे हैं।
विजिलेंस आगाही हफ्ता के मौका पर आसनसोल डिवीजन के जेर एहतमाम सेमिनार। आसनसोल में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक चौकसी आगाही हफ्ता की पैरवी करता है। आगाही की ये मुहिम शहरियों की शिरकत के जरिए अवामी ज़िंदगी में दयानतदारी और दयानतदारी के फ़रोग को अपने अहद का इजहार करती है। मशरकी रेलवे के आसनसोल डिवीज़न में मुख्तलिफ सरगर्मियों के जरिए ये विजिलेंस हफ्ता 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक मनाया जा रहा है। चौकीदारी से आगाही हासिल करने के सिलसिले में आज 29 अक्टूबर 2020 डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस आसनसोल के नए मीटिंग हॉल में आसनसोल के डिविजनल ब्रांच ऑफिसर्स के साथ एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। मिस्टर M.K. मीना एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर ने अपने खिताब में कहा कि आसनसोल डिवीज़न ने सेमिनार्स और क्विज़ के इनेकाद, निज़ाम में बेहतरी, एहतियाती तदाबीर और तमाम मुलाजमीन में शिकायत के खिलाफ फौरी जांच पड़ताल के जरिए चौकस रवैया अपनाने की हिदायत की है। मैंने बहुत से इकदाम किए हैं। आसनसोल मंडल बदउनवानी के खिलाफ सफ़र रवादारी की पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है और तमाम शराकतदारों के फ़आल हिमायत और शराकत से ईमानदारी को फ़रोग देने और बदउनवानी के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। मिस्टर कौशलेंद्र कुमार सीनियर डिविजनल इंजीनियर कोऑर्डिनेशन और मिस्टर मनीष सीनियर डिविजनल फाइनेंस मैनेजर आसनसोल ने भी इस मौके पर अपने ख्यालात शेयर किए। इससे पहले मिस्टर M.K. मीना एडिशनल डिवीज़न रेलवे मैनेजर आसनसोल ने हमारे मुल्क के इंज़माम की रूह के साथ आसनसोल डिवीज़न के अफसरान और मुलाजिमीन को कौमी इत्तेहाद का हल्फ दिलाया, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के वज़न और इक़दामात से मुमकिन हुआ है। हमारे कौम के इत्तेहाद, सालमियत और सलामती को महफूज और मुस्तहकम करने का अज़्म किया गया। आज के लिए SMS ऑफ द मोमेंट, मजबूर कलम मजबूत नहीं हो सकती। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश। अस्सलाम वालेकुम।